Assalamu alaikum, dear students. Today we have a last poem of our first year syllabus. It is I Had Reached Your Doorsteps, written by Ghulam Ali Allana. We may say commonly G. Allana. First of all, I will explain the biography of this poet because this is one of the Pakistani poets we study in English literature. Mostly we study Western poets, but this time we have a Pakistani poet. He was born in 1906 and died in 1985. He was born in Karachi, Pakistan. He remained mayor of Karachi. Now here I define the word mayor. We may call it a mayor is the head of the city or elected by government. In 1956, he was elected as president of the International Organization of Employers, Brussels. And in 1962, he elected vice president of the Economic Committee of the General Assembly of the UNO. You have studied about UNO in chapter number 3 in our book of prose. You know about what is General Assembly, what is Security Council, what are duties of secretaries. And the last one, he remained chairman of the United Nations Commission on Human Rights for the year 1975 to 1976. Human rights, you know what are the basic rights of human. Now I am going to teach you the lines of this poem, but before this I will tell you what is the main message of this poem, why Ghulam Ali Allana has written this poem. There are two questions which I will tell you verbally. The first one is how do we connect to our Allah and what is the right path to follow. Are you getting? Okay, now let's begin with the text. I lost the scroll of instructions you gave to guide me to the door of your house. Now in the first two lines there is a word, a main word, scroll. Scroll means a piece of paper, or you may say this is paper, script, manuscript. Poet says, I lost that paper which you have given me to follow or to reach your doorstep. आपने जो मुझे पेपर दिया था, आपने जो मुझे स्क्रिप्ट दी थी, वो मुझसे खो गई है या वो मुझसे गुम हो गई है, जो कि आप तक पहुंचने का रास्ता उसमें बयान किया गया था. I sat in distress on life's crossroads and asked the wayfarers and the caravans. Wayfarers हम कहते हैं people who are wandering here and there on foot, sometimes without any purpose or sometimes with purpose. And caravans means a crowd, or you may call it group of people. Now he got confused, he was in trouble. Now what should he do? He has lost his script, or you may call it chart, to follow the destination towards Allah. अब ये क्या करे, परेशान है. रास्ते में there were few people. He started to ask them and asked the wayfarers and caravans to show me the way to my destination. इसने पूछना शुरू किया कि कौन सा सही रास्ता है जो मुझे अल्लाह के घर तक या अल्लाह के नज़दीक पहुंचाएगा. Some said the way was long and tortuous. You had said it is short and delectable. Delectable means comfortable. अब you may hear it many mouths many talks. जितने मुंह उतनी बातें. अब कुछ बंदों ने कहा कि the way was long, रास्ता तो बहुत तवील है, लंबा है, and tortuous, तकलीफ़दा है. मतलब उसको डिमोटिवेट कर दिया कि मतलब ये कभी भी नहीं पहुंच सकता अल्लाह के करीब. उसी वक्त फिर पोइट क्या करता है, ही स्टार्टेड टू एड्रेस टू गॉड. आपने तो कहा था कि रास्ता बहुत छोटा और आरामदायक, कंफर्टेबल है, एवरीबडी कैन रीच. फिर आगे गया वो. अदर्स ओपाइंड इज अ वर्ब विच मीन्स हैविंग ओपिनियंस. अदर ओपाइंड इट वॉज नैरो, वाइंडिंग एंड अपहिल. दीज आर थ्री एडजेक्टिव्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नैरो, वाइंडिंग एंड अपहिल. फिर दूसरे बंदों ने अपना मशवरा दिया कि रास्ता बहुत तंग, बल खाता हुआ, वाइंडिंग, ऐसे कहते हैं हम वाइंडिंग, बल खाता हुआ
और अपहिल पहाड़ी वाला है, सीधा नहीं है। दिस इज़ नॉट स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल, दिस इज़ नॉट स्मूथ, दिस इज़ रफ, जिगजैग, जिगजैग भी हम कह सकते हैं ऐसे। अब दूसरे बंदों ने आगे क्या कहा, अदर्स ओपाइंड इट वॉज नैरो वाइंडिंग एंड अपहिल। अब वो और परेशान हो गया। यू हैड सेड, फिर उसने खुदा को एड्रेस किया, यू हैड सेड इट इज़ स्ट्रेट एंड यूनिवर्सल। आपने तो कहा था ये बहुत सीधा साधा सिंपल और यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है। दे शाउटेड, फिर दूसरे बंदे उसको मिले, रिलीजियस पीपल, दे शाउटेड इट इज़ द ड्रीम ऑफ बिगोटेड फैनेटिक्स। ये मज़हब परस्ती लोगों का ख्वाब है कि हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, कोई भी नहीं पहुंच सकता। दिस इज़ द व्यू ऑफ रिलीजियस पीपल, क्लर्जी मैन और सेंट्स। बिगोटेड की मीनिंग है ब्लाइंडली अटैच, जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं लोग, और फनेटिक्स जो रिलीजियस मैटर्स के हवाले से जो अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, मे बी दीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉट। एंड देन इन द लास्ट सेशन द व्हाट हैपेंड, यू हैड सेड इट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। फिर वो खुदा को एड्रेस करता है, आपने तो कहा था कि ये हकीकत है, कायनाती हकीकत है। इन अ वर्ल्ड दैट इज़ वर्थ बट अ मोमेंट, इस दुनिया में जो कि अहम है पर कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हे के लिए। नाउ हियर आई एड माई व्यू पॉइंट, सी नाउ वाई अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस, ठीक है, वाई अल्लाह हैज़ सेट अ बर्थ एंड अ डेथ, because he wants to assess, he wants to check us whether we are doing bad deeds, whether we are doing good deeds. So this world is important but not everything. Try to remember this phrase, this world is important but not everything. Then you came and handed me the chart. अभी अल्लाह को उस पर तरस आ गया, because God is merciful, and I found I was sitting at the very gate. अल्लाह ने उसको कहीं से वो स्क्रिप्ट दे दी जो उसने लॉस्ट कर दी थी, और उसने उस स्क्रिप्ट में देखा कि मैं तो बहुत आपके करीब हूँ। नॉट नोइंग, मुझे तो पता ही नहीं था, आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप्स, कि मैं आपके दरवाजे तक पहुँच गया हूँ। नाउ सिंपली व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हैज़ गिवन अस होली कुरान, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड देयर। Now what we are doing, we are not reading, we are not understanding what it says. If we have any kind of problem, we start to ask people, हम लोगों से पूछते हैं। Even people don't know the ABC of those problems, they start giving advices on those topics. लोग क्या करते हैं, advices देना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनको कुछ पता ही नहीं है। Why we are doing such things? We are educated, we must recite Holy Quran. आई हैव अ क्वेश्चन, कौन सा वक्त होता है जिस वक्त हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं? सिंपली यू विल से व्हेन वी आर प्रेइंग, व्हेन वी डू वर्शिप। जब भी हम इबादत करते हैं हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बहुत करीब जुड़ जाता है और अल्लाह के हम बहुत नज़दीक होते हैं। जब हर चीज़ अल्लाह ने बयान कर दी है होली कुरान में, देन वाई वी आर आस्किंग, कीप आस्किंग पीपल व्हाट इज़ द राइट थिंग, व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग। और लोगों का काम में गुमराह करना, पीपल स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग अस। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हुए थे, नंबर 1 स्क्रॉल, आई एम गोइंग टू राइट, और दूसरा लास्ट सेशन में हुआ था चार्ट। ये चार्ट बेटा सिंबलाइज करता है होली कुरान को। दिस वर्ड सिंबलाइजेज होली कुरान। अल्लाह हैज़ गिवन अस होली कुरान ना, इट इज़ फॉर आवर गाइडेंस, वी शुड रीड इट, वी शुड अंडरस्टैंड इट। इट सेज ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया क्योंकि हम इंसान को परखना चाहते हैं, हाउ मेनी आर डूइंग गुड डीड्स एंड हाउ मेनी आर डूइंग बैड डीड्स। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम आई विल एक्सप्लेन इन 2 लाइन्स। अल्लाह इज़ नॉट फार फ्राम एनी पर्सन, अल्लाह हमसे दूर नहीं है, वो हर चीज़ जानता है। वो ये भी जानता है वाट वी विल थिंक आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद हम क्या सोचेंगे उनको ये भी इल्म है। सो वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड हेल्प ईच अदर, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली अदर्स। नाउ हियर आई से ब्लाइंडली अदर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं करें, अपने रिलेटिव्स को फॉलो नहीं करें, अपने सिबलिंग्स को फॉलो नहीं करें, नहीं, यू मस्ट, बिकॉज दे ऑलवेज गिव अस एडवाइस फॉर गुड डीड्स नॉट फॉर बैड डीड्स।
कहने का मकसद ये है, यू मस्ट हैव नॉलेज फॉर दोज थिंग्स। आप कोई भी काम करना चाहते हो, यू मस्ट टेक सजेशंस, एडवाइस, बट डू इट what is right, don't do it what is wrong, because the central idea of this poem is Allah is very near to us. He is watching us, observing us, and if we want any help, any kind of help, we should read Holy Quran. That's all. Here I end my lecture. I hope you will like it, and if you have any kind of difficulty about your first year syllabus, then you may ask or you may leave a comment box. Allah Hafiz.